Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, today it is our lab session, and we have so far seen that we develop the ERD, we create the ERD in which we represent different entity classes and relationship between them. So, we have seen the student, course, teacher, field, and project tables, and we have seen the relationship between them. One student can take many courses, one course can be taken by many students, one table, one student can work on maximum one project. On a project, there can be maximum one student. One project can be taken by maximum one teacher. One teacher can supervise maximum many projects. One course can be taught by many teachers. One teacher can teach many courses. One teacher can have maximum one field. Of a field, we can have maximum many teachers. So this we have seen throughout the semester. हम इसको देखते रहे थे. And we found out that whenever we go into the logical model, we convert each table into a relation. We do not know about the much details of the physical design, but we know about the logical design. So logical data model is the relational data model. So we make one table for each entity class. Is it so? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now check. अगर मैंने हर टेबल को हर एंटिटी क्लास टेबल बनाया, then we said कि sir we must relate them. So in order to relate them, we said that whenever we have binary one to many, we always take the primary key of one side into many side relation. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. here it is very obvious that I will take the field ID into teacher table and teacher ID into the project table. And we have seen that, in fact, in case of binary one to many, one to one, we can take the primary key of any table to the other table. I can take the project ID over here, or I can bring the right number over here, or I can put the primary key in both of them. So let's play a game. We will do what? We will just take the primary keys to both of the relation. हम दोनों में ले जाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा and we will learn how will it work. So this is like this. Yes or no? Yes, sir. And what about binary many to many? Sir, we create a new table. A new table. We create a new table. So now check. So now if देखो अब तुम्हें ये फायदा हुआ ना, तुम्हें हर चीज मालूम है. You know that when to take the foreign key, when not to take the foreign key, rather make a new table. So you are clear about it. So now check. If I make tables and I make the foreign keys, I already have the 5 tables. But when I make the relationship table, the bridge table, this one will be the 6th. This one will be the 7th. Yes or no? Yes, sir. Yes. So we are going to have 7 tables along with primary key of teachers table in the project table, primary key of the field table in the teacher table, and primary key of the student in the project, or the project in the student, or in both. Yes or no? पहले सिर्फ ये बता दो. Yes, sir. यस सर. अब जरा देखना, ये सब आपको आता है, लेकिन मैंने इसलिए अभी अभी जब आपको रेस्ट दिया था तो मैं इनफेक्ट इस पे लग गया कि चलो दोहरा देते हैं. जो दोहराया गया हमारे पास आ गया. अब जरा मैं अगर आपको एक चीज गौर करने पे बोलूं कि जरा इसको देख के मुझे बताइए ये क्या हुआ है और ये मुझे जरा समझाइएगा. नो 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 नो, इसको पेंट में खोलो ताकि तुम कुछ लिख सको उसमें. सो नाउ हियर, हाउ मेनी टेबल्स नाउ आई हैव? 7. 7. Sir, 7 are the original one, and this one is in fact the bridge table, the connecting table that is connecting the student and the course table. Then, sir, we have another connecting table, the bridge table. Which one? Sir, this one that is connecting in fact the course and the teacher.
So these two are the new tables. Yes or no? Yes, sir. So you know very well how to create tables in MS Access. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, आप दोहरा लेना और उसका भी ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है। अब बिल्कुल आपका काम मुकम्मल होने की तरफ चल रहा है, और इसीलिए हम ये जो रुके थे ना कुछ दिन के, यार अभी रुको जरा, पढ़ाई पे तवज्जो दो ताकि हमारा काम तेज चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। अब आप दोबारा से लैब पर आओ और अपने उस काम को जोड़ना शुरू करो। नाउ चेक, आई हैड टू टेक द राइट नंबर टू द अदर टेबल, हैव आई टेकन? Yes, sir. यस सर। सर आप ले गए हैं पहले ही, हमसे पहले ही। हमें आपने चाय पीने का बोला और आपने खुद चाय नहीं पी, क्योंकि मेरी चाय पहले वाली भी खराब हो गई थी जो मैंने नाश्ते के बाद बनवाई थी, ठंडा पानी हो गई थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि भाईजान मुझे ऐसा कीजिए कि आप चाय ना दीजिएगा जब तक कि मैं 11:30 बजे वेला ना हो जाऊं। अच्छा अब देखो मेरा बेटा, यहां से ये प्रोजेक्ट आईडी, लुक इट वाज हियर एंड आई हैव टेकन इट ओवर हियर। लेट मी नो आर यू गेटिंग मी और नॉट। एक बच्चा भी जो भी समझ ना हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुमने ये करना है। देखो बेटा, either I would have brought the right number to this table or I have taken the project ID to this table. So what I have done, I have taken the reg number to the project and project ID to the student table. So it is okay, it is done. पहले बताओ समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सर इसका सर आपकी बात बोलो का बोलो। सिंपली मतलब ये है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर को आप प्रोजेक्ट की फील्ड में प्रोजेक्ट की टेबल में ले जा सकते हैं, और इसका जो इसकी जो प्राइमरी की है प्रोजेक्ट के टेबल की, उसको आप स्टूडेंट के टेबल में ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल यही है। और मैं दोनों में ले गया हूँ जानबूझ के, ताकि तुम्हारा ये वाला कंफ्यूजन भी खत्म हो। कैसे दोनों जाएंगे कैसे बता दूंगा अभी। अच्छा अब जरा ये चेक करो, वन टीचर कैन टीच मैनी, कैन सुपरवाइज मैनी प्रोजेक्ट्स। देखो टीचर की आईडी को यहाँ पर आना था, हाँ या नहीं? तो देखो Yes, टीचर sir. की आईडी को भी ले आया हूँ। ये देखो ये है टीचर आईडी, और मैं इसको भी उठा के ले गया हूँ यहाँ से। ये मेरे पास एक चीज बन गई। और मैंने कहा था एक फील्ड के कई उस्ताद हो सकते हैं, तो नोट करो अब मैं क्या कर रहा हूँ। एक फील्ड के प्राइमरी की को मैनी वाली, मैंने तुम्हें कहा था कि मैनी में लेके जाते हैं हमेशा, याद है ना? देखो मैं मैनी Yes, वाले sir, याद टेबल में इसको ले आया हूँ। मुझे बताओ किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई? अब एक काम करो, इसका फौरन प्रिंट स्क्रीन ले लो। पहले इसका लो, सॉरी एक मिनट रुको, अच्छा हुआ। पहले इसका प्रिंट स्क्रीन लो ताकि तुम लोगों के पास हर चीज हो। बाद में इसकी जगह छोड़ो, इसको बाद में बनाना, इसको इधर ही लैब में बनाना, ठीक है? एक सफा छोड़ दो, यानी ऊपर आधे पे आधा आ जाएगी एक तस्वीर और आधे पे दूसरी। इसका प्रिंट स्क्रीन ठीक लिया है सर, है, दूसरी भी दिखा दें। दूसरी भी दिखा देते हैं जी। और ये भी बनाओ इसके रंगों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके रंग तुम्हें बाद में समझ में आएंगे कि यार ये फायदा हुआ था हमें। हो गया सर 1 मिनट। चलो प्रिंट स्क्रीन लो, डन। चलो बस बाकी दोस्त भी करो ताकि मैं फिर शुरू कर सकूं, ठीक है? अब देखो मेरा बेटा, तुम सबको ये मालूम था कि इफ I'll have to take the primary key of student table in the project table, then what will I do? I will open the project table in design view, right click, design view, check। देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही रेज नंबर अभी लाके डाला है। अभी जब आप चाय पीने गए तो मैंने जल्दी से इसको यहाँ पे रख दिया। देखो आई हैव ब्रॉट रेज नंबर ओवर हियर, और मैंने इसकी विड्थ साइज आई केप्ट सेम एज दैट वाज मेंशन्ड इन दिस वन। इसका भी डिजाइन खोलो। रेज नंबर का साइज क्या है देखो जरा। 5। डेटा टाइप क्या है? short शॉर्ट टेक्स्ट। वेरी गुड बोला करो बेटा। अब प्रोजेक्ट में देखो रेज नंबर का टाइप क्या है? शॉर्ट टेक्स्ट। और इसका साइज क्या है? देखो तो आपने सिमिलर रखना है। देखो मैंने अब हरकतें क्या की, मैंने सिर्फ, अब मैं इसको बंद करता हूँ ताकि तुम्हें ये ख्याल रहे कि यार कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मैंने जिस टेबल में फॉरेन की ले जानी थी, मैं उस टेबल के, अब देखो प्रोजेक्ट में एक और ले जानी थी, मैंने वहां पर एक और हरकत की। देखो मैं टीचर आईडी को भी ला के बिठा दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है? एंड टीचर आईडी इज ऑलरेडी इन द टीचर्स टेबल, चेक टीचर आईडी short 5। and now if I say that table में foreign key है, yes sir, teacher ID short and 5, yes or no? यस सर। Yes, sir. And I have created a new table for the registration, course code and course title, check।
course reg number and course code, and I selected both and made them the primary key. ये सब आप पढ़ चुके हो. You have already studied all that. That is why I'm just moving. If you feel any difficulty, you may ask me. समझ में आ रहा है? तो एक नया Yes, टेबल sir. बनाया, उसको हमने नया नाम दिया. फिर मैंने, क्योंकि there was a many to many relationship between a course and a teacher, so I made another new table. Check course code and teacher ID. So now check, I have made all the tables as per my requirements. Let me show you those. Like this one. अब मेरे पास देखो, in the student table I have kept the project ID. बनाई है अभी कि नहीं? अभी अभी दिखाइए. In the project Yes, sir. table, in the project table I have brought the reg number. In the project table I have brought the teacher ID. I have made two new tables that I have shown you right now. So that means in Excel my tables are ready. Yes or no? Yes, sir. Excellent. Yes, sir. अब लिखो how to add foreign keys in a relation. Heading दो मेरा बेटा आज की लैब की, जल्दी से. How to add a foreign key in a relation. Write down open the table. So the first step. पहला step. Open the table in design view in which you want to add foreign key. Add foreign key. In which के बाद क्या है? In which you want to add the foreign key. Now check. I opened the student table in design view. Check. नजर आ रहा है? Can you see that? Yes, sir. So this is table with the right number, name and class, and I want to bring over here a foreign key that is in fact project ID. Remember? Project ID को यहाँ पर आना था. Check. Project ID would have gone to the student table or reg number to the project. So what I'm doing, I want to take the project ID in the student table, short, and the width is similar to that one, that is 5. Done. Now write down, add the field, and write down in bracket foreign key. सर ये उसके साथ लिखे हाँ, उसी के आगे नेक्स्ट लाइन में या उसी के आगे फुल स्टॉप के बाद add the foreign key in the table and keep its data type and field size and keep के बाद क्या है सर? and keep its data type and field size same to that of primary key in other tables. So let me tell you what do I mean by that.
check. I have created a project ID and I am keeping is data type text because in the table project, my primary key is short text. So I kept it short text. And then this project ID has the field size 5 in the primary key table. So when I brought it in the foreign key check, I kept it short text and I kept it 5. Yes or no? Yes, sir. Now save the table and now close and save the table. Now close and save the table. सही है भी लिखे हाँ लिखो बेटा लिखो, तो मैं एक एक लफ्ज लिखवा रहा हूँ ना, ताकि वही क्लास की टाइम लिखो बेटा, क्लास वाली हैबिट्स बनाई रखो अभी, क्योंकि इसका फायदा है कि अगर कोई बच्चा पीछे रह गया लैब में तो वो ये परेशान ना हो मैंने कौन सा स्टेप मिस किया तो अगला नहीं हो रहा, ऐसे करो इसको। देखो मैंने क्लोज किया और मैं यस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, यस हो गया। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? अब लिखो एक हेडिंग Yes, छोटी सी, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम यहाँ के परेशान होते हो। इंपॉर्टेंट, so far we have, so far सर ये हेडिंग है या नोट है इंपॉर्टेंट लिखो, नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है ऊपर वाले के लिए। so far we have added the attributes, the fields, added the fields, ब्रैकेट में क्या लिखना है? फॉरेन की, वेरी गुड, फॉरेन की और ब्रैकेट में एस, फॉरेन कीज, एक से ज्यादा भी ऐड की होंगी कहीं पे, फॉरेन कीज but have not related those to the other table, जोड़ा नहीं है, अभी बताया नहीं है, to the other table, full stop. Therefore MS Access does not know these are foreign keys, or which foreign key is related to primary key of which table, Sir, ये MS6 के बाद MS6 not noun which are foreign keys, sir, मेरा does not know, कोई बात नहीं, नेट का मुझे पता है, does not know which foreign key, बेटा कोई और बच्चा बोलेगा, मेरा जहन बिल्कुल ना कहीं और है सर, which foreign key is related बोला था या connected बोला था, क्या बोला था? does not know these are foreign keys हाँ और सॉरी, which foreign सॉरी, MS Access, मुनीब दोबारा सुनो, MS Access does not know that these are foreign keys Yes, sir, इसके आगे and which foreign key is, or which foreign keys or which foreign key is, तसव्वुर बोलो बेटा, related to primary key of which table यहीं तक था। yes sir So we have to relate the
foreign keys with related primary keys in MS Access. कोई मेरा बेटा मुझे बताएगा सेकंड स्टेप क्या था? नंबर 1 रिप्रेजेंट एंटिटी क्लासेस और दूसरा क्या था? सर एक तो रिप्रेजेंटेड रिलेशन टेबल, रिलेशनशिप थी दूसरा स्टेप। तो अब यहाँ पर एक हेडिंग दो जरा मोटी सी कि एक्सेस में कैसे करेंगे। सर कागज पे तो आपने करना सिखा दिया, एक हेडिंग दो, हाउ टू डिफाइन सर इसके फौरन बाद रिलेशनशिप। इसके फौरन बाद हेडिंग दे दो, सोल्यूशन है ना, हमने कहा था सोल्यूशन क्या है, रिलेट करें। तो अब नीचे लिख रहे हैं कि हाउ टू रिलेट, कैसे करना है। तो लिखो हाउ टू डिफाइन रिलेशनशिप इन MS Access। ये हेडिंग है बेटा। पहले बताओ यहां तक कुछ समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब जरा लिखो, नीचे लिखने शुरू करो स्टेप्स। मेन मेन्यू, वही पुराना वाला स्टाइल है हमारा, ठीक है। मेन मेन्यू, गो टू मेन मेन्यू, देन गो टू डेटाबेस टूल्स। आप एरो लगाओगे, ठीक है। देन गो टू डेटाबेस टूल्स। नाउ चेक, दिस इज डेटाबेस टूल्स, ए ओवर हियर डेटाबेस टूल्स, ठीक है। नाउ राइट डाउन select relationships from the ribbon और ब्रैकेट में लिखो ऑप्शंस। select relationships from the ribbon और ब्रैकेट में लिखो ऑप्शंस। लिख लिया? नाउ चेक सर एक मिनट, अच्छा ठीक है। रिलेशनशिप्स फ्रॉम द रिबन सर। फ्रॉम द रिबन, ये देखो रिबन होते हैं ना, इनको हम लोग पहले कहते थे टूल्स, अब ये रिबन कहलाता है पूरा स्ट्रिप, इसके ऊपर टूल पड़े होते हैं। और ब्रैकेट में लिख लो ऑप्शन और टूल। ये रिलेशनशिप का टूल नजर आ रहा है आप सबको, यू कैन सी द रिलेशनशिप टूल, राइट। नाउ व्हेन आई, यहां तक हो गया, डन? यस सर। देखो नाउ व्हेन आई क्लिक दिस वन, आई गेट दिस डायलॉग बॉक्स, ठीक है। मैंने जो पहले खोला था इसलिए नजर नहीं आ रहा था, अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम खोलते हो यू गेट दिस डायलॉग बॉक्स। नाउ राइट डाउन इन द नेक्स्ट लाइन, select the tables from the show table dialog box. Select the tables from the show table dialog box. लिख लिया? Yes sir. Now check. I want to make the relationship between all the tables, so I will select all. Look, I will add it. Now write down in the next line, close the show table dialog box. Close the show table dialog box. Now check. मैंने close किया। Now what I can do is मैं इसको जरा सा properly I will arrange, ताकि you must have your that diagram in your eyes and you must be able to see कि हम कर क्या रहे हैं। Sorry. So now check. In our ERD, the first entity class was student. The second was the course. Third one was the project. Yes or no? Yes sir. Fourth one was the Teacher.
teacher. And fifth one, last one, the field. Last one was that of the field, right? Done हो गया जी, चलो अच्छा हो गया. And we created the new table for many to many. So this is the new table. We created the table for many to many. Again, this is the table. पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? Yes, आगे sir. Now write down. Now write down. In order to relate the foreign key and primary key, लिखो जरा अगली लाइन में, in the next line. In order to इधर फिफ्थ create, स्टेप है. ये अगला स्टेप है उसी का ना, जहां पे हमने ऐड करने के बाद करना था. In order to create the in order to create the, मैंने क्या बोला था यार, relate the, in order to relate the primary key with foreign key, drag the primary key of one Sir, table, in order to relate the primary key with the foreign key, yes, comma लगाओ, drag the primary key of one table and drop it on the other table's foreign key, or drop it on the foreign key in other table. Drop it on the foreign key in other table. Now check. इसको देखो बेटा, मैंने क्लिक किया, ये देखो प्राइमरी की है. sir, and I drop it on the foreign key in other table. देखो बेटा, मैंने यहाँ से इस प्राइमरी की को पकड़ा. I just pressed the mouse key and then I dragged, and I put this project ID on this PID. Name does not matter, the data type and size matters, right? So I will just drop it down over here. So when I drop, it asks me edit relationship. So now write down, in the edit relationship, select, press button create. In the edit relationship dialog, press create. ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में, नीचे ब्रैकेट में लिखो, if we do not check the, और ये देखो जरा इधर, enforce referential integrity. If we did not देख रहे check हैं सर the, इसको. लिखना है बेटा, लिखना है पूरा, ताकि तुमने जब तुम बाद में बैठ के पढ़ो तो परेशान ना हो जाओ क्या हो रहा है. If we do not check the enforce referential integrity checkbox, the foreign key will keep on taking invalid values. Full stop. Therefore, check. सर ये तो ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है. क्या कह रहे हो बेटा, क्या करके लिखना है? सर को बोल रहा है ब्रैकेट क्लोज कर देनी है यहाँ पे वैल्यूज के बाद, वैलिड इनवैलिड वैल्यूज. हाँ,
Therefore, check all 3 check boxes. ये देखो नजर आ रहे हैं हमें, enforce के नीचे एक्टिव हो गए तीनों, ठीक है। To make the foreign key values valid रहे, to make the foreign key values valid. अभी मैं नहीं कर रहा, I'm not doing that, ताकि I must show you the mistake. यहां तक लिख लिया सबने? यस सर। अब देखो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, Yes, sir. ये यहां से तुम्हें एक लाइन मिलती हुई नजर आएगी इस जगह पे। देखो कैसे मैंने किया क्रिएट, ये देखो इन दोनों के बीच में लाइन मिल गई, यस और नो? यस सर। यस सर। अब जरा नाउ जस्ट चेक, मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के टेबल में और यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट डालता हूँ। देखो मेरे पास है सिर्फ आई हैव ओनली P1 और प्रोजेक्ट टाइटल मेरे पास है फॉर एग्जांपल IIUI डेटाबेस, ठीक है। और मैं इसको टैप करके इसको बंद कर, तो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आगे नहीं रखा हुआ है, इसके ना टीचर आईडी, ठीक है। अभी मैंने तो जरूरत नहीं समझी। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट केस में, देखो सरा, अब यहाँ पे है रेज नंबर 1 मतीन BSCS F18 या BS आप लोग SE हो तो F18। अब देखो प्रोजेक्ट वहां पे कौन सा पड़ा हुआ है? सर एक प्रोजेक्ट है ये UADB का। उसका नाम क्या था? उसके आईडी क्या थी? ये देखो P1, आईडी क्या थी? P1। अब देखो मैं क्या हरकत कर रहा हूं, मैं यहाँ पे P9 लिख रहा हूं। मैं आई एम पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ प्रोजेक्ट दैट इज नॉट इन दैट टेबल, यस और नो? That doesn't exist. That does not exist. So if I open this table and I ask you, Mateen is working on which project, you will provide me a foreign key value that is invalid, yes or no? Yes sir. यस सर। पता है ये क्यों हुआ? Because we did not check, I did not check the enforce referential integrity constraint checkbox. मैंने जान के नहीं किया था। मेरी बात समझ रहे हो? तो Yes देखो मैं sir. 2 लिखता हूँ और 2 के साथ मैं कर देता हूँ आबिद। मैं यहाँ पे लिखता हूँ BSSE F18 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ P1। ये तो वैलिड है, बात समझ में आ रही है? सो इट इज टेकिंग ऑल वैलिड इनवैलिड वैल्यूज दैट इट मस्ट नॉट टेक। ये तो मेरा रेफरेंस ही गलत है। P9 इज नॉट देयर एंड आई एम रेफरिंग। पहले बताओ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. So I just delete this row by गलती अभी फिलहाल, ठीक है। इसने ले लिया, access took that wrong value from me. So what should I do now? Check. That is why I said when मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ इसको, और देखो अब मैं लेके जाऊंगा I'll take the project ID to the project ID and I will check and create. Now I will say create. Now for the time being it is showing you one to many. I'll tell you how to make it one to one. Got me? But now check, now it is taking one to many. And when I open this table again, student table, let me show it, student table, right? It is open. And now I want to write down, this guy is taking P9. हमने दिया था पहले, इसने ले लिया था कि नहीं? ले लिया सर। अब देखो ये क्या हरकत करता है मेरे साथ। जो ही मैं टैप करता हूं ना, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इसका मैचिंग वैल्यू नहीं है प्रोजेक्ट के टेबल में। P9 इज नॉट देयर, सो प्लीज डू नॉट गिव मी अ रेफरेंस दैट इज इनवैलिड। कुछ पढ़ा अकल शरीफ में? यस सर। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं? Yes. मैं दोबारा करूंगा, नहीं मैं दोबारा करूंगा, मैं समझ करूंगा, आया। लेकिन मैं आया है, मैं दोबारा भी दोहराता हूँ। देखो इसका मतलब ये मुझे रोकना शुरू हो गया है विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। तो मैं समझ में आ गया कि यार नहीं 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 नहीं, वैलिड वैल्यू दो। अब देखो उसने फिर ले ली क्योंकि P1 इज वैलिड। इसका यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स P1 एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज P1 इज देयर, it is valid, so it is taking that value. So now what will I do? Let me show you again. So here, and forget about this many, okay? I'll tell you how to set the index and how to make it unique, not duplicate. I'll do it tomorrow, inshallah. अभी मैं तुम्हें फिलहाल कहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ. So this is clear? यस सर, क्लियर हो गया।
Let me do another thing. This field ID I am taking to this field ID. Got me? And now check. अगर मैं ये चेक नहीं करूंगा तो क्या होगा? कोई बच्चा बोले ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे फायदा हुआ है इतने जोर लगाने का. If I don't check these check boxes, what will happen? सर अगर सिर्फ हम वो incorrect value लेंगे It will take invalid values. आ जाएगा. Invalid values. Sir, it will start taking invalid values. वो सब डेटाबेस तबाह कर देगा. तो देखो अब क्रिएट किया. अच्छा मजे की बात है यहाँ पर 1 to many बिल्कुल ठीक था. ये तो हमने बनाया था ना. ये मैनी कहीं से बन रहा है, इसको भी हम चेक करते हैं. ठीक है, अब जरा यहां से आओ. ये वाली टीचर, हाँ ये टीचर आईडी थर्ड टेबल में गई थी, इसको यहाँ ले जाओ, इसको भी यही करवाओ. चेक करो क्रिएट. ये भी हो गई. ठीक है, अब यहां से इस कोर्स को लाके इस कोर्स के ऊपर फेंको. चेक क्रिएट. ये भी हो गया. गॉट मी और नॉट? Got it, sir. वेरी गुड. अब सर, इसको देखो, yes, sir. इसको दोबारा देखना जरूर है, इसको छोड़ना नहीं. लगता है कि आ गया है, लेकिन थोड़ी सी गलती भी हमें परेशान करेगी बाद में. इसको एक दफा दोहराना सब में. सो नाउ चेक create. So now in another thing, this teacher ID must go over there. This create. And as I kept the primary key in both tables, so let me bring it over here. Yes, I want to bring it. अच्छा, उसने उसी को स्ट्रॉन्ग करके मुझको दिखा दिया है 1 के साथ. अदरवाइज आई वांटेड टू मेक इट. उसने यहाँ से इसको मुझे लेट मी चेक दिस. वो कह रहा है आप पहले से हैं तो हमें यहाँ पर ये या तो न्यू क्रिएट करवाना पड़ेगा. लेफ्ट टेबल का कौन सा? चलो मैं इसको तुम्हें कल बताता हूँ. ठीक है, बिकॉज ये इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने इसमें क्या किया हुआ होता था पहले बताओ. ठीक है यहाँ तक सर, ये क्लियर हुआ है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? सर इनवैलिड वैल्यूज तक Yes, क्लियर sir. है. इनवैलिड वैल्यूज तक क्लियर है. और ये भी सब कुछ क्लियर Yes, हो गया sir. कि सर हम कैसे इसको बना रहे थे. ऐसे ही था. यस Yes, सर, sir, बिल्कुल ये ऐसे. अब सिर्फ एक काम करना है. अब तुम नीचे लिख लो एक चीज. हाउ टू क्रिएट 1-to-1 रिलेशनशिप. मैं करा ही दूं ताकि ये चीज खत्म ही हो जाए, बजाय से कि हम इसको एक चीज को छोड़े. सर इट विल बी नेक्स्ट. इट विल बी नॉट Next. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग. छोटी हेडिंग एक और बना दो इसके साथ. और जो रेज नंबर वाला इसका दोबारा नहीं बनाने दे रहा, मुझे इसको पढ़ने देना. ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा है. क्योंकि वो ये हमें बताना पता है क्या चाह रहा है. कह रहा है ताल्लुक तो बना हुआ है, तो आप क्या कोई नया ताल्लुक बनाना चाह रहे हैं, किसी और की को किसी और के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेटेड है, तो ये हमें दोबारा नहीं क्रिएट करने दे रहा. और कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है. ठीक है हाउ टू ऐड. जी बेटा, कोई सवाल? हाउ टू ऐड. हाउ टू ऐड? नो How हाउ. to create. रुक जा, सोचने दे मुझे. हाउ टू क्रिएट 1-to-1 रिलेशनशिप. 1-to-1 कैसे बनाते हैं? अब लिखो जल्दी से जरा अपने पास. देखो मैं इस 1-to मैनी को यहाँ से मिटा के जाऊंगा ताकि मैं इसको ठीक करके वापस आऊं. इसको मैंने डिलीट दबाया, सर टाइम हो गया वैसे. मिटा दिया. बस 2 मिनट दे दो मुझे सिर्फ. मैं चाह रहा हूँ ये चीज अभी चल रही है तो मैं 1 मिनट में याद रहेगी. राइट डाउन. ओपन द टेबल विद फॉरेन की. सबसे पहले खोलो उस टेबल को जिसमें फॉरेन की गई हुई है. इन डिजाइन व्यू देखो, स्टूडेंट के टेबल में फॉरेन की आई हुई थी ना, प्रोजेक्ट आईडी ऐसे ही था ना. Yes, sir. नाउ राइट डाउन, सिलेक्ट द फॉरेन की. Select the foreign key. Then go to the general properties. And set the property indexed. ये देखो मेरा कर्सर इसके पास है. And set the property indexed as लिख लिया. ये देखो बेटा, Go to the property and fit. and set
the index property as, ये देखो ये इंडेक्स प्रॉपर्टी है, मैं इसके अंदर गया और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कॉम्बो में जा रहा हूँ, मैं ड्रॉप डाउन में जा रहा हूँ, ये देखो मैंने ये ड्रॉप किया और यहां से तुम अब लिखो, एक सेकेंड, सेट एज यस नो डुप्लीकेट, चेक, देखो यहाँ पे लिखा नो डुप्लीकेट, यस नो डुप्लीकेट। जब ये डुप्लीकेट लेने ही नहीं देगा ना तो फिर 1 to 1 ऑटोमेटिकली बनेगा, दोबारा वैल्यू ही नहीं आने देगा वहां पे वो कभी भी। सो राइट डाउन सेट द इंडेक्स वैल्यू एज यस और ब्रैकेट में लिखो नो डुप्लीकेट। लिख लिया कि नहीं? देखिए डन। अब लिखो उसके बाद क्लोज एंड सेव द डिजाइन व्यू, क्लोज एंड सेव, बस इतना लिख दो। Again, go to the main menu, arrow database, arrow relationship. Again, go to the main menu, arrow database, arrow relationship. लिख लिया कि नहीं? हो गया सर। हो गया। अब देखो Yes. जब मैंने रिलेशनशिप को क्लिक किया, अब लिखो नाउ क्रिएट द रिलेशनशिप। अब जरा क्रिएट करके देखते हैं हम इसको, बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, वही पुराना वाला तरीका है। लिखो नाउ क्रिएट द रिलेशनशिप, या हाँ बिल्कुल, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप करके दिखाऊं, हो गया? सर आपका माइक खराब है लिख लिया कि नहीं? सर, माइक उतार के लगाए, आवाज नहीं सही आ रही। नहीं सर। सर आपकी तो आवाज माइक नहीं इशू कर रहा है। सर आपकी आवाज सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, माइक उतार के लगाएं सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपका साइन भी आ रहा होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे हमारे। सर अगर आप बोल रहे तो आवाज नहीं आ रही। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर, वी विल वॉच। यस सर, क्लियर ठीक हो है। रही है। सर यहाँ से इसके बाद फिफ्थ स्टेप ये है कि नाउ क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, एंड 6 हम ये लिख लेंगे, एंड सिलेक्ट अ 1 to 1 रिलेशनशिप।
ऑप्शन in drop ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। सर ये 1 to 1 जो है ये खुद आएगा ना? आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने और आपने जो कि इंडेक्स ठीक प्रॉपर्टी है चेंज सर, की थी 1 to 1 खुद ही हो जाएगा। ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है सर, नो डुप्लीकेट्स मींस 1 to 1 मींस के 1 उसमें आ सकता है, 2 नहीं आ सकता। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर लास्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? नाउ सेलेक्ट क्रिएट द रिलेशनशिप बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द 1 to 1 रिलेशनशिप। ये लिख दूं? It will create automatically. वन टू वन रिलेशनशिप। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, बस यहाँ पे एंड कर दें। लिख लिया सर ये। कर लो। सर कर डन। ठीक है सर, इधर ही मार्क कर दें अपने अपने रोल नंबर। थैंक यू सर। ओके सर। सर हम अल्लाह हाफिज। आप लोग मुझे सुन सक रहे हो यार? मैंने बिल्कुल ये ब्लूटूथ सब ऑफ कर दिए हैं, हर चीज बंद हो गई है। यस सर, आ गया। सर अब यस हाँ, सर, अभी सुन सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, आखिरी स्टेप सिर्फ ये था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना था, कुछ भी नहीं करना था। वो खुद ब खुद 1 to 1 बनाएगा क्योंकि उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी आप सेट कर चुके हो पहले ही। ठीक समझो है मेरी सर, बात? यस सर। चलो बस कोई बच्चा अटेंडेंस नोट करो ताकि वो असद को दे सकूं और ताकि मैं फिर यहाँ से भाग रहा हूँ, ठीक है? मेहरान यार इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ ये कर लो मेहरान, स्क्रीनशॉट ले लो यार ताकि ना जल्दी से मैं भाग जाऊं। ओके, थैंक यू मुझे बच्चा सेंड लोग, कर दिया सर। ये दोहरा लेना प्लीज। अच्छा सर ये रिकॉर्डिंग जी शेयर कर दी साथ साथ, बस मेहरबानी।